آج ہمارے مہمان ہیں خصوصی پروگرام میں عالمی یوم خواندگی اور محکمہ لٹریسی کی ترجیحات. اس حوالے میں آج ہماری مہمان محترمہ طاہرہ رفیق ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر لٹریسی ہیں. اور السلام علیکم میم. السلام. کیسی ہیں آپ میم؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. میم 98.6 جذبہ FM کے لائیو پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اچھا، میں یہ چاہوں گا کہ فروغ تعلیم میں لٹریسی ڈپارٹمنٹ کا کیا کردار ہے؟ جی، لٹریسی نان فارمل بیسک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا جو مقصد ہے وہ ایسے تمام علاقوں میں ایجوکیشن فراہم کرنا ہے جہاں پہ ہمارے فارمل سکول جو ہیں وہ کام نہیں کر رہے یا نہیں بن سکتے. تو ایسے مارجنلائزڈ ایریاز میں غریب لوگوں کے لیے یا آؤٹ آف اسکول چلڈرن جو کسی وجہ سے اسکول چھوڑ گئے تھے بچے، ان کے لیے اسکول قائم کرنا ہے، ان کو تعلیم مہیا کرنا ہے. اچھا، ان کے لیے تعلیم مہیا کرنا. جی. اچھا، میں یہ چاہوں گا کہ لٹریسی ڈپارٹمنٹ کا قیام کب آیا، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ ہاں، لٹریسی ڈپارٹمنٹ 2002 میں یہ ڈپارٹمنٹ قائم ہوا ہے، اور جو اس کے اغراض و مقاصد ہیں وہ ایجوکیشن ٹو آل ہے کہ تمام لوگوں کو، جیسا کہ ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ علم حاصل کرنا اس ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے. تو اس میں ہم چھوٹے بچوں کے ساتھ ساتھ ایسے بالغ افراد کو بھی تعلیم دیتے ہیں جو کسی وجہ سے اسکول نہیں جا سکے تھے اور تعلیم کو ادھورا چھوڑ دیا تھا. تو ان کو ہم اس وقت جو ہے وہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اسکل بھی پرووائڈ کر رہے ہیں. اچھا، تعلیم بالغاں سے اب مجھے ایک بات میری ذہن میں آئی ہے کہ آپ نے ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ میں تعلیم بالغاں کے کتنے مرکز بنائے ہیں؟ ہاں، ہم لوگ 25 ہمارے اس جو ہے سیشن میں چلے ہیں. اور جس میں ہم نے 16 سے 24 سال کے لوگوں کو نہ صرف لکھنا پڑھنا سکھایا ہے بلکہ زراعت کا کام سکھایا ہے ان کو، اور جو ہے امبرائڈری کا کام لیڈیز کو سکھایا ہے، بیوٹیشن کا سکھایا ہے کام. تو اس کے علاوہ جو ہے اسپیسیفکلی ہمارا ایک پروجیکٹ چلا تھا ابھی علم و ہنر، جو کہ پورے پنجاب میں 4 ڈسٹرکٹس میں چلا تھا، جس میں مظفر گڑھ ایک ہے، جس میں 5ویں تک ہم نے ان کو تعلیم دی. بچے اور بچیوں کو 2 سینٹر بنے تھے، ایک بچیوں کے لیے اور ایک بچوں کے لیے. اور ان میں جو بچوں کا جو سینٹر تھا اس میں ہم نے ان کو ٹریڈ دی تھی الیکٹریشین کی، کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان پڑھ بچوں کو ہم نے الیکٹریشین کی جو اسکل سکھائی، اور ساتھ میں ان کو 5ویں کا امتحان دلوایا اور انہوں نے ان کو پاس آؤٹ کیا. تو اس کے بعد گورنمنٹ نے ان کو ٹول دیے تاکہ وہ اپنی اسکل کو یوٹیلائز کر سکیں. ویری گڈ. اچھا، یہ مرکز جو ہے مظفر گڑھ شہر میں ہے یا پورے ڈسٹرکٹ میں جہاں یہ پروجیکٹ آیا تھا، اور لاسٹ ایئر ہم نے اس کو مکمل کر لیا ہے الحمدللہ. اور جو فیمیل کا جو ہم نے اس میں ٹریڈ تھی وہ امبرائڈری تھی، اور ہیڈ تونسا پہ ہم نے یہ اوپن کیا تھا گرلز کے لیے، جس میں ہم نے کڑھائی سلائی اور جو ان کا خاص طور پہ ایک پروفیشن ہے، ایک اسکل ہے ریلی کی، وہ بنانا سکھائی تھی. اور اگر آپ کا کبھی جانا ہو، آپ وہ جا کے ایریا دیکھیں تو اس کو ہم نے جو علم ہے فیصل نعمان نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا. اور لاہور سے ٹیم آئی، سروے کیا، اور سیٹسفیکشن کے بعد ہم نے وہاں پہ سینٹر اوپن کیا تھا. وہاں پر کس جگہ یہ آپ بتا رہے ہیں؟ یہ بستی شیخاں والی ہیڈ تونسا پہ. جی. اچھا میم، یہ بتائیں کہ یہ جو لٹریسی ڈپارٹمنٹ کے اہداف اور تکمیل مراحل جو ہیں وہ کیا ہیں؟ اس کے اہداف تو یہی ہیں کہ آپ آئی تھنک آبجیکٹیوز پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی، میں اس کا ہدف میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو کنسیو کیا ہے، یہ سوچا ہے کہ ہم اس ایریاز میں اس جگہ پر ہم یہ سلسلے بنائیں گے. اہداف جو ہیں نا، آپ کے ہدف جو ہیں، جی، اس میں جس کو اچیومنٹس کہتے ہیں. جی ہماری یہ کہ 5ویں تک تعلیم ہم نے مہیا کرنی ہے. اور اس میں دوسرا جو ہمارا پروجیکٹ ہے جس میں ہم 30ویں تک تعلیم دیتے ہیں بچوں کو، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ تعلیمیں جو بالغاں کی تعلیم ہے وہ دینی ہے. اور الحمدللہ جتنے ٹارگیٹس ہمارے مظفر گڑھ کے ذمہ لگائے گئے تھے یا ہمارے مظفر گڑھ کو دیے گئے تھے وہ الحمدللہ وہ پورے ہیں. اچھا، ضلعی ڈھانچہ بھی ہے آپ نے؟ جی بالکل. اچھا، اس کے کیا فرائض ہیں؟ ضلعی ڈھانچہ میں ہمارے پاس 2 قسم کا سٹاف ہے. ایک فیلڈ کا سٹاف ہے جو کہ فیلڈ کو دیکھتا ہے، میری ٹیچرز کی مانیٹرنگ کرتا ہے، سپرویژن کرتا ہے. اور ایک سٹاف جو ہے آفس میں جو کہ آفیشیل ورک کرتا ہے. اور جو فیلڈ سٹاف ہے، اگر میں فیلڈ سٹاف کی بات کروں تو ان کے اوپر ایک نگران ہوتا ہے جس کو ہم لٹریسی کوآرڈینیٹر کہتے ہیں، LC بولتے ہیں. اور جو ہمارا فیلڈ آفیسر ہوتا ہے اس کو ہم LM بولتے ہیں، لٹریسی موبلائزر ہوتا ہے. اور ان کے اوپر ایک ڈسٹرکٹ لٹریسی موبلائزر ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے ایک جو ہے وہ لٹریسی ٹرینر ہوتا ہے.
जो कि तमाम टीचर्स को ट्रेनिंग अच्छा, करवाता जो लोग आपके डिपार्टमेंट में जो लोग स्किल देते हैं, है जी जो हुनर देते हैं, जी उनका भी कोई अलहदा कोई आपने वो बनाया है? स्किल वही टीचर जो है हमारा वही उनको मतलब ट्रेन करता है, लेकिन जो रेलिवेंट स्किल्स हो जाती हैं तो फिर उसके लिए हम जैसे अलग से electrician टीचर है। जी बिल्कुल, उसके लिए तो रेलिवेंट टीचर मतलब जो पढ़ाने के लिए था बिल्कुल, बिल्कुल। वो अलग टीचर था मैं वही अर्ज करना चाह रहा था और मैंने। स्किल वाला टीचर बिल्कुल अलग था। वो अलग है, वो इसी आपके ढांचे में शामिल हैं वो लोग भी? जी जी बिल्कुल, उनको हमने उस वक्त हायर किया था, उनकी पेमेंट दी गई थी उनको मतलब तनख्वाह के तौर पे। अच्छा। और उनकी अपनी अपनी शॉप है इलेक्ट्रिशियन की, मतलब ठीक है। एक बच्चा जो क्वालिफाइड था, डिप्लोमा होल्डर था, अपना काम कर रहा था, प्रैक्टिकल भी कर रहा था। और ये जो बच्चे मेरे अब फ्री हुए हैं यहाँ से जो इलेक्ट्रिकल ट्रेड से, कुछ बच्चे उनके साथ काम कर रहे हैं और कुछ बच्चों ने डिफरेंट जगहों पे अप्लाई भी किया हुआ है। ठीक। अच्छा, ये बताएंगे कि कितने बच्चे अब तक आपने स्किल देकर और तालीम देकर कितने बच्चे आपने अब तक? ये अपनी नौयत का पहला प्रोग्राम था, तो इसमें 25 जो लर्नर्स हैं वो अभी हमने यहाँ से किए, क्योंकि ये पायलट प्रोजेक्ट था। पायलट प्रोजेक्ट था, तो इससे मुराद ये है कि हौसला हुआ है? जी बिल्कुल, इसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ा है अच्छा। हमें, और काफ़ी सारी मुश्किलात भी आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी हमने इसको 100% जो है अपने से टारगेट अचीव किया। नहीं, 16 से 25 साल के दरमियान जो बच्चे हैं वो तो जाहिर है एक बालिग भी हो जाते हैं और फिर समझदार भी हो जाते हैं, जाहिर है अपने अपने जगह काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन उनको मोटिवेट करना बहुत बहुत मुश्किल है। उस सिलसिले में क्या आपकी? बिल्कुल चौहान साहब, यू आर वेरी राइट। हमें यही तो मुश्किल हुई कि हमारा जो एरिया है मुजफ्फरगढ़, इसमें जो जैसे बच्चा मैं कहती हूँ ना कि 10 साल का होता है तो वो रोज़ी कमाना शुरू कर देता हाँ, है। बिल्कुल ऐसे है। ये तो हमारे पेरेंट्स, हाँ जी, पेरेंट्स भी इस चीज़ के आदी हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। और आपको पता है कि यहाँ पे कुछ इतने वसाइल नहीं हैं, जी जी, जैसा कि बिग सिटीज़ में होता है, तो वो बहुत मुश्किल होता था। तो उसके लिए फिर गवर्नमेंट ने उनको वजीफ़ा देना शुरू किया था। नहीं, वैसे वेरी गुड, ये बहुत अच्छा है। तो वजीफे की लालच में फिर वो आया करते थे यही। अच्छा, मैं यही आपसे मैं कहलवाना चाह रहा था कि आपके डिपार्टमेंट ने इस लिहाज से भी इसको उन बच्चों का अर्निंग का भी आपने ख्याल रखा। जी जी। तो इस सिलसिले में वैसे आपका नाम पूरे डिस्ट्रिक्ट में मोहतरमा ताहिरा रफ़ीक साहिबा, आपको एक बड़ा अच्छे नाम से याद किया जाता है, क्योंकि मैं भी सिविल सोसाइटी से हूँ और हमारे यहाँ भी बड़ा कुछ इस पर गौर किया जाता है। तो आपके किरदार को हम तहसीन पेश करते हैं। थैंक यू सो मच। सामीन इकराम, हमारा प्रोग्राम आलमी यौम खानदगी और महकमा लिटरेसी की तरजीहात के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम है। आज हमारे मेहमान हैं मोहतरमा ताहिरा रफ़ीक, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, लिटरेसी मुजफ्फरगढ़। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं। जज्बा FM 98.6 ट्यून करने का शुक्रिया। ना ए रोटी है ही निरा घा दा घा वही टुकुर किलो बेतारा जो आधा किलो पकोड़े चा घिनवा ते लस्सी अच बोर्ड ते खवा चा वड्डी तेरी दावत आख्या जो हम दिल पसंद होटल एंड रेस्टोरेंट ते जुलू, लेकिन तेरी जिद ते कहीं ढांढे दी जिद एक बराबर है यार। तू हर वेले दिल पसंद होटल एंड रेस्टोरेंट दा ना ता इवें गिंदे जिवें तेरे नाल निकाह थिया होया होवे। 3 दफा कबूल है कबूल है कबूल है कीती वदई। ईमान नाल दसा ते को खाना खाते चस आइए को दिल पसंद जी सर्विस कहीं बे दी है को दिल पसंद जियां लजीज ते मयारी खाना किथई आज तक खा डिठी को ते गाटा भनी जी उड़ही क्यों ने फड़कदा ढांढे वाले होटलें दे घेन दी मेको। दिल पसंद होटल दा खाना तोहफा है तोहफा। बेशक फ्रेश देसी मुर्गा, डमरा मछली, पेपर फिश, बोनलेस फिश बगैर कंडे दे, सूप, पाकिस्तानी, चाइनीज ते बारबेक्यू खाने तेरे अखीं दे सामने तैयार कीते वेंदन। बेशक आर्डर ते फुल स्टीम बकरा भी तैयार करेंदन। लज्जत ते मयार दा वाहिद ना दिल पसंद होटल एंड रेस्टोरेंट, नज़द फैसल बैंक, जंग रोड, मुजफ्फरगढ़। 0306 0301 786। नासिर पीपा वाल्द आरिफ किली, काशिफ राकट वाल्द आरिफ किली, हफीज चिड़ी वाल्द आरिफ किली, लबैक अल्ताफ टिंडन वाल्द आरिफ किली, एडी पीटर वाल्द आरिफ किली, आरिफ किली, आरिफ किली, आरिफ किली। वही आरिफा
ये सारे बाल तेरे हैं ओ मरे किडू टैंकर भरते स्कूल पलट सटी अदोई मैं भी पहले बे औलाद हम फिदा हुसैन कोकड़ी मेरे को मशवरा दिते कि शाफी दवाखाने वाले बे औलादी दा कोई इलाज करें दिन होए 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 उठाओ इलाज करा अल्लाह औलाद देसिया बा शाफी दवाखाने तो इलाज करम वाल आंदे ही गए ए उठाओ सारा फल फूल लगे भी यार इधर साइड ते आ मैं को भी शाफी दवाखाने दा दसा यार मैं भी बे औलाद हां शाफी तू इलाज करावा ठीक थी वैसा क्यों न थी सही बे औलादी दा जितना कामयाब इलाज शाफी दवाखाना वाले करें ना इवें बिया कोई पाकिस्तान ज नहीं कर सकदा जितने बे औलाद ही वे ना फौरन शाफी दवाखाना तो इलाज करो इंशाअल्लाह बहारा ही बहारा शाफी दवाखाना थलजीट मिल गेट दे बिल्कुल सामने थल चौक दे नाल डेरा गाजी खान रोड मुजफ्फरगढ़ 0301 96 84 184 शाफी दवाखाना आओ सेहत पाओ। जज्बा FM 98.6 तमाम फीमेल्स के लिए ला रहा है प्रेजेंटर बनने का नादिर मौका। आप एक पढ़ी लिखी फीमेल हैं या फिर एक फीमेल स्टूडेंट हैं और आप समझती हैं कि आपके अंदर रेडियो प्रोग्राम प्रेजेंटर बनने की जबरदस्त सलाहियत मौजूद है, आप बाएतमाद हैं और खूबसूरत अंदाज में बातचीत कर सकती हैं, तो फिर अब मौका मत गंवाइए। जज्बा FM मुजफ्फरगढ़ पर फीमेल प्रोग्राम प्रेजेंटर के लिए आज ही अपना CV जज्बा FM के ऑफिस फर्स्ट फ्लोर ख्वाजा फरीद आर्केड मुल्तान रोड मुजफ्फरगढ़ में एडमिन मैनेजर मुनव्वर शहजाद को जमा कराइए और जज्बा FM की टैलेंटेड टीम का बतौर फीमेल प्रेजेंटर हिस्सा बनिए। जज्बा FM द बेस्ट रेडियो इन टाउन 98.6 ओए धाड़ वो ए वाल किथों आ गए टुक्कोरे च वाल ए देख आलू मटर पकाए नहीं ये वाले चालू मटर पकाए नहीं चाह एच तेरे वाल बुहारी एच तेरे वाल ओए ढांडियां दे घा एच तेरे वाल बर्बाद थी गया मेरी ता हयाती वालो वाल थई पईए। अच्छा सही शादी तो पहले कहीं वेले ताको मेरी जुल्फां नागणी दी कार लगदियां हन ते कहीं वेले काले बदलां दी कार लगदियां हन। ओ हुन मैं चुन चुन ते थक पिया हुन बदल नहीं निनावा बन गन मेरे वास्ते। हुन मेरा क्या कसूर है ढांदे जो पहन वे काबू करीने को सुपर हर्बल हेयर ऑयल ते सुपर आमला शैम्पू इस्तेमाल कर जेड़ा वाल नहीं गिरन देंदा खुश्की सिकरी दा खात्मा करते डू मुहे वाल भी खत्म करें दे ते वालां को जड़ा तो मजबूत कर देंदे। 100% रिजल्ट वास्ते सुपर हर्बल हेयर ऑयल दे नाल सुपर आमला शैम्पू भी लाजमी इस्तेमाल करे। सो मुजफ्फरगढ़ दी आवाम वास्ते खुश खबरी हुण तुसां अपने शहर मुजफ्फरगढ़ तो सिर्फ एक दुकान तो सुपर हर्बल हेयर ऑयल ते सुपर आमला शैम्पू घेन सकदे वे। मुजफ्फरगढ़ विच रशीद हलवाई चौक वेसो उथा वाइंदे हाफिज शॉपिंग सेंटर तो सुपर हर्बल हेयर ऑयल ते सुपर आमला शैम्पू घिनसो। एड्रेस दोबारा नोट कर गिनो हाफिज शॉपिंग सेंटर रशीद हलवाई चौक मुजफ्फरगढ़ इथू ताकू सुपर हर्बल हेयर ऑयल ते सुपर आमला शैम्पू मिल वेसी। अगर तुहाकू सुपर हर्बल हेयर ऑयल या सुपर आमला शैम्पू दे बारे कोई भी मालूमात चाहिदी है तवल ई हेल्पलाइन दे कॉल कर दे मालूमात घिन सकदे वे। नंबर नोट कर गिनो 0303 75 86 266। The Voice of Muzaffargarh, Jazba FM। वेलकम बैक सामीन कराम। आज का खुसूसी प्रोग्राम आलमी योम खानदगी और महकमा लिटरेसी की तरजीहात के हवाले से आज का खुसूसी प्रोग्राम। और मेरे साथ आज मेहमान हैं मोहतरमा ताहिरा रफ़ीक साहिबा, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर लिटरेसी मुजफ्फरगढ़ हैं और हम इनसे तालीम के हवाले से बहुत से सवाल कर चुके हैं और बहुत से सवाल कर रहे हैं। और आपसे भी गुजारिश है कि जैसे कि मैंने आपको नंबर बताया 0320 29 86 986, इस पर आप हमारे मेहमान से तालीम के हवाले से मशवरा भी कर सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं। मोहतरमा, एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके यहाँ जितने भी अब आपने ये सिलसिला जब से शुरू किया, आप कब तशरीफ़ लाई हैं मुजफ्फरगढ़ में?
सर मैं 8 फरवरी 2020 में मेरा ट्रांसफ़र हुआ है। ट्रांसफ़र पहले हुआ मैं था। खानेवाल में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही थी। ठीक है। तो उसके बाद मैंने जो है यहाँ पे ज्वाइन किया है अच्छा, और उससे लेके अब तक मैं यहीं पे काम कर रही हूँ। नहीं, अब देखिए आपने अपने होने का सबूत दिया है। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोशिश की है। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी सिविल सोसाइटी भी और हमारे एरियाज़ जहाँ जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ से भी एक बड़ा अच्छा रिस्पांस जो है ना आपके हवाले से, कि आपने अपने होने का सबूत दिया और बहुत सारे आपने बच्चे अब तक कितने लर्नर जो हैं वो पढ़ रहे हैं? जी हमारे पास 13,000 प्लस बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसमें तादाद जो है वो फ़ीमेल की ज़्यादा है। 7,000 जो है फ़ीमेल है और 6,000 प्लस जो है वो लड़के तालीम हासिल कर रहे हैं। वेरी और गुड। हम जो है नर्सरी से प्राइमरी तक तालीम दे रहे हैं बच्चों को। जी, तो इंशाल्लाह ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन लिटरेसी नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन जिंदाबाद, डिपार्टमेंट का। जिंदाबाद। आप ये सोचें ना चौहान साहब, अगर ये बच्चे अगर हम इनको स्कूल ना बना के देते, और बड़ी अहम बात जो मैं बताना चाहूँगी कि हम इनको डोर स्टेप पे एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। वेरी गुड। मतलब कि एक कॉलोनी है, एक बस्ती है और वहाँ पे कोई पढ़ी लिखी बच्ची या बच्चा मौजूद है, तो हम उनको उनके घर के करीब ही स्कूल बना देते हैं। या उनके घर में ही? जी, या उनके घर में अगर कोई है हाँ, तो करीबी बस्ती के जो बच्चे बच्चियाँ, जैसे आपको पता है हमारा कल्चर है, बच्चियाँ थोड़ी सी बड़ी हुई तो हम उनको ज़रा दूर नहीं भेजना भेजते, पसंद बिल्कुल नहीं सही बात करते। है, सही बात है। तो वो वहीं करीबी उनकी बस्ती ही की बच्ची होती है, उसके पास जाके वो तालीम हासिल करती हैं। 4 घंटे से 5 घंटे वो उनको पढ़ाती हैं डेली, जिसमें जो है उनको ये तालीम दी जाती है जो हमारे फार्मल स्कूलों में किताबें पढ़ाई जा रही हैं, सेम टू सेम वही बिल्कुल पोजीशन। बिल्कुल। अच्छा, इसमें आप बच्चियों को कुछ सैलरी की सूरत में या उसकी सूरत जी, में? जो हमारी बच्चियां हैं जिनकी हम क्वालिफिकेशन जो है FA से MEd तक ले लेते हैं, और इनको हम 8,000 पर मंथ प्रोवाइड करते हैं, मतलब सैलरी देते हैं, जिसको ऑनरेरिया बोलते हैं। तो ये देखिए ना आप, आजकल हमारे जितने अनएम्प्लॉयमेंट है, जी, जी। तो एक बच्ची FA पास अपने घर में बैठी है, महफूज है, कहीं नहीं आ जा रही, 8,000 रुपया सिर्फ उसकी वो बचत है जो उसको घर बैठे मिल रही बिल्कुल है। ऐसा आई थिंक सो दैट इज़ वेरी सफिशिएंट। बिल्कुल। अच्छा, स्कूल कैसे खोले जाते हैं, इसको सिलेक्ट कैसे करते हैं आप? इसमें ऐसा है कि एक तो ओपन मेरिट है, कोई भी अगर समझता है कि ये हमारी जगह है और यहाँ पे बच्चे मौजूद हैं और कोई फॉर्मल स्कूल नहीं है और करीब करीब कोई स्कूल, कोई ऐसी एकेडमी है जहाँ पे बच्चे नहीं पढ़ सकते, कोई भी प्राइवेट स्कूल भी मौजूद नहीं है, तो वो हमें खुद रजू कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे लिटरेसी मोबिलाइज़र हैं, फील्ड में घूमते फिरते रहते हैं, मतलब सुपरवाइज करते हैं। जी, जी। वो सर्वे करते हैं, ऐसी जगहों को आइडेंटिफाई करते हैं जहाँ पे बच्चे मौजूद हों, आउट ऑफ स्कूल हों, या फिर जो है वो बच्चे हों और स्कूल मौजूद ना, तो वो फिर वहाँ से कोई पढ़ी लिखी बच्ची जो है और या बच्चा, उसकी फ़ाइल लेकर आते हैं ऑफिस, तो उसको फिर हम देखते हैं, बुलाते हैं, इंटरव्यू करते हैं, दैन उसके फिर ऑर्डर होता है। बिल्कुल सही बात। अच्छा, क्या लिटरेसी डिपार्टमेंट 5वीं का इम्तिहान खुद लेता है? जी बिल्कुल, एक प्रॉपर सिस्टम है, हमारा एक विंग है, एग्जामिनेशन सेल है, जिससे पेपर बना के भेजते हैं और हम पेपर कंडक्ट करते हैं, प्रॉपर उसकी जो है वैल्यूएशन होती डिस्ट्रिक्ट है, बोर्ड बना रिजल्ट हुआ है आता है। बिल्कुल बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है उसका? डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट में तो हम लोग ही हैं, हाँ। लेकिन जो हेड ऑफिस में है जी, वहाँ जी। पे एक प्रॉपर सिस्टम है। अच्छा। और जो हमारे स्कूलों की मॉनिटरिंग होती है वो ऑनलाइन होती है, ड्यूरिंग पेपर्स भी ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो रही होती है, मतलब हेड ऑफिस बैठा सब कुछ देख रहा है, उनको हर चीज़ का पता है। बिल्कुल सही। अच्छा, 5वीं का इम्तिहान पास करने वाले तालिब इल्मों को सर्टिफिकेट दिया जाता है? जी बिल्कुल, लिटरेसी नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है बाकी इदारों की तरह बच्चों को एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है जो 5वीं बच्चे पास कर लेते हैं और वो वैलिड होता है। क्या नहीं, वो इसका मतलब है किसी बोर्ड से वो एफिलिएशन उसकी है? अब 5वीं लेवल पे तो बोर्ड से एफिलिएशन ज़रूरी नहीं होती। नहीं, बोर्ड में तो पाँचवीं जमात में जो इम्तिहानात लिए जाते हैं, जी, वजीफे के ये इम्तिहानात जिसको रजिस्ट्रेशन हुई होती है, पैक लेता है, एग्ज़ाम लेता है इसके। अच्छा। तो इसमें जो है अब हमारा अपना डिपार्टमेंट है जो अच्छा। एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है और रिज़ल्ट प्रिपेयर कर रहा है, और बच्चों को जो है वो सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं और वो सर्टिफिकेट काबिल कबूल है, वैलिड है। अच्छा, क्या ये जो इम्तिहानात हैं जो पास करने वाले बच्चे हैं, जी, क्या ये आगे पढ़ते हैं आपकी उसमें? कितने कैसे बच्चे हैं? जी बिल्कुल, हमारी भरपूर कोशिश होती है कि जो बच्चे हमसे प्राइमरी कर गए हैं तो उनको हमने स्कूल जो फार्मर स्कूल जो करीब होगा उसमें इनरोल करवाने के पाबंद होते हैं हम लोग। ठीक। ये और बात होती है कि अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे या बच्ची को आगे नहीं पढ़ाना चाहते, उनको मोटिवेट किया जाता है, ठीक। अगर नहीं करते तो फिर मजबूरी होती है। ठीक। तो अभी देखिए जो कल रिज़ल्ट आया मैट्रिक का, इसमें हमारी ही स्टूडेंट है जिन्होंने प्राइमरी हमारे स्कूल से पास किया, अलिशबा बीबी उनका नाम है, रोल नंबर है
7387, जिन्होंने 1100 में से 845 मार्क्स लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। ये तो बहुत अच्छी ये रिसेंटली अचीवमेंट है हमारी, जो achievement, बहुत कल अच्छी कल जो achievement है। रिजल्ट अनाउंस हुआ है। मैं 98.6 जज्बा FM और जितने मेरे इस वक्त सामाइन सुन रहे हैं उनकी जानिब से आपको हम खिराज तहसीन पेश करते हैं Thank you कि so आपका ये बहुत अच्छा एक रिजल्ट है। अच्छा, ये बताएंगे कि स्कूलों से दूर गरीब बच्चों तक इल्म की रसाई जो है वो आपका एक मिशन है। बिल्कुल। और ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसके लिए आपने क्या इसका तरीकाकार बनाया हुआ है? और इसमें तरजीहात तो जाहिर है आपकी यही हैं कि दूर दराज के जो बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाते और जो लोग गुर्बत का शिकार हैं और उन्हें आप थोड़ा बहुत वजीफ़ा भी देने के बाद फिर उन्हें आप लेकर आते हैं, ये दिक्कत तलब काम है और इसको मोटिवेशन जो है वो बहुत मुश्किल होती है। तो इस सिलसिले में आपका जो डिपार्टमेंट है वो क्या किरदार अदा कर रहा है? वैसे पहले सवाल हो चुका है, हाँ, लेकिन मैं फिर दोबारा रिपीट कराना चाहूँगा। इसमें मैं थोड़ा सा अपना कंट्रीब्यूशन शामिल करना चाहूँगी, बताना चाहूँगी कि मैं और मेरी टीम, शायद हम इस डिपार्टमेंट में आ गए हैं तो हमारी सोचें बदल गई हैं। बिल्कुल सही है। हम हर वक्त यही सोच रहे होते हैं कि हम किस तरह बच्चे को स्कूल में ले आएँ, हम किस तरह से कहाँ ऐसी जगह पे स्कूल ओपन कर दें जहाँ पे तालीम की रोशनी से बच्चे महरूम हैं। जौन सा मैं यहाँ बताना पसंद करूँगी कि एक बार मैं लिया जा रही थी तो रास्ते में कोटद्दू जो नहर के साथ सड़क है, पित्तल रोड है आई थिंक सो, तो वहाँ पे मैंने एक स्कूल देखा, हल्का सा बोर्ड लगा हुआ था। मैंने गाड़ी रुकवाई, मैं खुद स्कूल में गई तो देखा कि बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर्स मौजूद है, दिस रियलिटी है, बिल्कुल ट्रू है। अच्छा। तो अब तो वो मौजूद है स्कूल। तो मैं गई हूँ तो मैंने कहा जी ये आप स्कूल चला रहे हो तो कैसे स्कूल चला रहे हो? उन्होंने कहा जी पहले तो हम पैफ में थे, पैफ ये कोविड से पहले की बात है। अच्छा। उन्होंने कहा मैडम पैफ तो हमारा ख़त्म हो गया है, अब ये गरीब बच्चे हमारे सोच रहे हैं क्या करें। जॉन साहब वहाँ पे 100+ बच्चे बैठे होंगे और 3 टीचर्स खड़ी थी। आप यकीन करें कि भाई मैं वहाँ से गुजर रही थी और ऐसे मेरे दिल में ख्याल आया, मैं रोड में गाड़ी रोकी, मैं अंदर गई और वो टीचर्स कहती कि हम इसको ना क्लोज़ करने जा रहे हैं। मैंने कहा प्लीज़ आप इसको क्लोज़ ना करें, मैं आपको स्कूल देती हूँ, आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स दें और आप यहाँ पढ़ाएं। यकीन करें वो टीचर्स मेरे पास आई तीनों, हमने उनको भरपूर सपोर्ट किया, किताबें, कापियाँ, स्टेशनरी, हर चीज़ दी और वो स्कूल इतना ग्रो किया वहाँ पे। अब दोबारा से उसको पैफ वालों ने एक्सेप्ट कर लिया। दैट इज़ आल्सो आवर अचीवमेंट। वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए ना, अगर हम वो स्कूल क्लोज हो जाता तो 110 बच्चे बेरारवी का शिकार होना था। बिल्कुल। आप बताए ना, बिल्कुल ऐसा। आप कभी आपको गुजरो, आप देखिएगा चारों तरफ खेत है और दरमियान में वो स्कूल है। वाह 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 वाह, ये आपने, अच्छा वो स्कूल आज भी है? जी बिल्कुल, अभी भी है, लेकिन वो पैफ में चला गया और वो हमारी अचीवमेंट है। हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से यही है कि हम इस तरह के स्कूल डेवलप करके अगर किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहते हैं, अपना कोई सिस्टम बनाना चाहते हैं तो उनको अलाउ है। हाँ, यानी कि नर्सरी तो हम तैयार कर रहे हैं, हमारा तो मकसद पूरा हो रहा है। बिल्कुल, मकसद पूरा हो रहा है। जी जी, वेरी गुड जी, बहुत अच्छा जी। अच्छा, मैं एक अर्ज़ करना चाह रहा था कि जो महरूम तबके के बच्चों के लिए इल्म के मौक़े तो आप कर रहे हैं, अर्निंग का भी सिलसिला है आपके यहाँ। अच्छा, इस सिलसिले में आप मेरी कम्युनिटी जो इस वक्त मेरी प्रोग्राम सुन रही है तो उसमें एक कॉल मैं देखता हूँ, मेरे साथ देखते हैं कॉलर कौन है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी। सर मोहम्मद इकराम बोल रहा हूँ मुजफ्फरगढ़ से। जी जी सर, मेरा मोहतरमा ताहिरा रफीक साहब से सर जी जी वो जैसे कि हम हो रहे हैं, हमारी बच्ची हैं, पढ़ी लिखी हैं, BA हैं, FSC हैं, वो कुछ प्राइवेट तौर पर स्कूल चला रही है, कुछ ट्यूशन सेंटर चला रही हैं। अच्छा, इनके बारे में भी कोई गवर्नमेंट का कोई वो प्लानिंग है कि इनका कोई फ्यूचर हो, कोई स्कूल ऐसे, इस बारे में मैंने सवाल पूछना था आपसे साहब। जी 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 बिल्कुल। मोहतरमा ताहिरा रफीक साहिबा मेरे साथ हैं और आपका सवाल भी उन्होंने सुन लिया है, तो मैं इंशाल्लाह सवाल का जवाब जो है वो ताहिरा रफीक साहिबा से लेते हैं। जी ताहिरा। सबसे पहले तो मैं ऐसे बच्चियों को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि जो अपने बिहाफ पे इल्म की शम्मा जलाए हुए हैं। ठीक। और जैसा कि उन्होंने बताया MSc साइकोलॉजी और BEd हैं वो बच्चियाँ, तो वो बच्चियाँ हमारे पास आएँ, हमें अप्लाई करें डिपार्टमेंट में, तो हमारे कुछ पैरामीटर्स हैं, उनको हम देखते हुए अगर वहाँ पे स्कूल ओपन पॉसिबल होगा तो हम ज़रूर खोलेंगे, उनको गाइड करेंगे। इस तरह के लोग ऑफिस आएंगे तब हमें पता चलेगा। मेरे कम्युनिटी से यही है कि वो डायरेक्ट ऑफिस आएँ,
लोग ऐसे होता है कि एक से इंफॉर्मेशन ले ली, दूसरे से इंफॉर्मेशन, बिल्कुल, लोगों की बिल्कुल। इंफॉर्मेशन कम मिलती है। मेरा ख्याल है कि इकराम साहब ऐसा है कि आप मेरे का सुन रहे होंगे, और ऐसा है कि लिटरेसी डिपार्टमेंट में यहाँ पर फयाज पार्क के साथ ही लिटरेसी डिपार्टमेंट है। अब वहाँ पर अगर वो बच्चियाँ आ जाएं और आके वो मैम ताहिरा रफ़ीक साहिबा से खुद मिल लें तो बड़े अच्छे अंदाज से उनको अवेयर किया जा सकता है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि बच्चियाँ अपने तौर पर यहाँ पर ट्यूशन सेंटर बना रही हैं, और बच्चियों ने बड़ी अच्छी खासी, बस एक दो तो मेरे नॉलेज में भी हैं कि तकरीबन कोई 30-40 बच्चे जो हैं एक बच्ची के पास वो पढ़ रहे हैं। अब्दुल जवान साहब कोई 70-80 बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं वहाँ पर मुख्तलिफ क्लासेस के। वेरी गुड। लेकिन वो तो शहर में है ना। मैं बिल्कुल सॉरी इंटरप्ट किया। जी जरा ये बात सुन लें। हाँ जी, इकराम साहब ऐसा है कि आपके इर्द गिर्द कोई हमारा फॉर्मल स्कूल मौजूद है, जैसे गवर्नमेंट का स्कूल होता है, आपके करीब कोई ऐसा स्कूल मौजूद है? आपका स्कूल जो है बच्चियों का वो कितने डिस्टेंस पे है? मेरा ख्याल है अच्छा, अगर ये मुझे सुन पा रहे हैं जी तो अगर इनका स्कूल जो है वो फॉर्मल स्कूल से 1-2 किलोमीटर के फासले पे है तो हम वहाँ पे अपना लिटरेसी स्कूल ओपन कर सकते हैं, क्योंकि लिटरेसी स्कूल ओपन करने के लिए हमें कुछ शराइत को देखना होता है। ठीक है। उन शराइत के ऊपर पूरा उतरना ज़रूरी होता है। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, कोई मुख्तलिफ काम जो हैं अब वो ज़रा थोड़ा सा बता सकेंगे मुझे? आपने सवाल तो मुझे बताया है और ये होना भी चाहिए कि कोई मुख्तलिफ काम। जी जहान साहब, अल्हम्दुलिल्लाह लिटरेसी नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट मुजफ्फरगढ़ को ये शर्फ हासिल हुआ है, और जो कि हमने हेड तोंसा पे ही जो फिशरमैन होते हैं, मछेरे होते हैं, उनके लिए कश्ती में स्कूल बनाया जो अपनी नौयत का पाकिस्तान का पहला पंजाब का पहला स्कूल। ये बड़ा अजीब, मुझे अजीब सा लग रहा है। ज़ाहिर है बच्चे तो वहाँ कश्ती में आते ही होंगे, या तो बच्चे वहाँ कश्तियों में घर तो नहीं है? वो बच्चे जो है ना वो रहते हैं, मतलब जजीरा टाइप होता है, जैसे आपको भी पता है दरिया सिंध के अंदर जो है जी, तो वो बच्चे वहाँ से आते जाते थे और जो मछलियाँ पकड़ा करते थे, जिनकी उम्र 16 से 24 साल थी, उनको गए और बड़ी मुश्किल से हमने उनको कायल किया। वो नहीं कि आराम से कायल होकर आ गए थे। तो वो हमारा प्रोजेक्ट है एडल्ट लिटरेसी का ALC, तो उसके तहत हमने वो प्रोजेक्ट चलाया, और दैट वाज आइडिया, मेरी तरफ से एक आइडिया था कि हम जो है रेगिस्तानों में, मट्टियों में, पहाड़ों में तो पानी रह गया, तो मैंने पानी का भी आइडिया दे दिया कि पानी में भी हम स्कूल बना सकते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और ये मैं समझता हूँ कि ये एक अपनी नौयत का ये पहले हमारे लिटरेसी का एक स्कूल है जो कश्ती में स्कूल बनाया गया है। कश्ती में घर तो सुना था, लेकिन कश्ती में स्कूल जो है वो वाकई एक बहुत बड़ी अच्छी बात। अच्छा, ये उन लोगों के लिए है जो मछेरे हैं, जो लोग सिर्फ दरिया के किनारे पर ही रहते हैं। अच्छा, वो जजीरों में रहते हैं, जैसे हमारे दरिया सिंध के अंदर बहुत से आगे जाके राजनपुर है, फाजिलपुर है। जी। जैसा कि आप कह रहे हैं ना कि पढ़ाई का हम लोग समझते हैं, आम कॉन्सेप्ट यही है कि पढ़ना लिखना और डिग्री हासिल करना। जी। शान साहब, आप जानते हैं कि तालीम के साथ तरबियत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे साथ कॉल है दी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी मोहम्मद जी पोल 88 तो तुसां अरशद चांडिया जी मेरा प्रोग्राम सुनते पे हो? ये प्रोग्राम सुनते पे जबरदस्त करने बैठे हो आप जवान साहब, मेरे प्रोग्राम के दीवाने वाले साहब यहाँ पे अधे रेडियो बंद किया रहा है के विचो। हाँ, बिल्कुल ते हुन ठीक है, हुन वो सारे प्रोग्राम दे शेड्यूल वो सिधा किया बिल्कुल हुआ ऐसे ही। ते आज दे प्रोग्राम के हवाले नाल तुसां क्या आखसो? आज मोहतरमा ताहिरा रफीक साहिबा आज मेरी मेहमान हैं और ये जरा लिटरेसी के हवाले नाल काम करें दे पेन। इन्हें काम बहुत जबरदस्त है, साकू है असाई कुदू अतर सलाम देतो जबरदस्त इख्तिराम में जरा लिटरेसी काम में का बहुत शुक्रिया तेरी पूरी टीम को दू अतर सलाम दे सर दू अतर सलाम बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी जी। बात ये देखें जी, ये हमारे सादा लोग हैं पुल 88 कोटद्दू से हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं ये जी। अच्छा, बात आप कर रही थी?
जी, वो जो कश्ती का जो हमने स्कूल ओपन किया था उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ी पजीराई मिली, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। और वो जो बच्चे हैं, मैं कह रही थी कि तालीम के साथ तरबियत का होना भी ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास अभी डिग्रियां तो हैं, अगर आप कभी उनसे बात कर लें तो वो वैल्यू से बहुत दूर जा चुके हैं। अब अगर हम इन बच्चों को देखें जो कश्ती वाले थे, माहीगीर बच्चे थे, बहुत सारी चीज़ें हमने इनको सिखाई, बहुत सारी चीज़ें मैनर्स सिखाई।